معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ یہ ہم لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی شکل میں ہم کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کر لے۔ دوستو، قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ہر دن آپ کو پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 8 پارے کی تفسیر کے مضامین کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ آج 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ دوستو، اس مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور کم وقت میں وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ سیشن شروع کیا ہوں۔ اس کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز پورے قرآن کا، پورے پارے کا، ایک پارے کا جو خلاصہ ہے، اس کے مضامین ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں جاگزی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور 9ویں پارے کے آغاز میں اسی قصے کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قوم کے نافرمان اور سرکش لوگوں نے آپ اور آپ کے لوگوں کو یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، تم لوگ ان خیالات سے باز آ جاؤ اور ہماری ملت، ہمارے دھرم، ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ یعنی ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اب تم لوگ ہماری طرف پھر واپس آ جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کو دربدر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اب ہم دوبارہ گمراہیت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، بددینی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرے اور فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زلزلہ آتا ہے اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے ان تک اللہ کا فرمان پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ کفر کی حالت میں مر گئے، اب ہم اس پر کیا افسوس کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے، فرعون کے قصے کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن یہاں 9ویں پارے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات اور نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے درباریوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو ایک توحید، ایک اللہ کے کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने मुतालबा किया कि आप अपनी सदाकत पर, अपनी रिसालत की सदाकत पर दलील दिखाएं। दलील क्या है? कोई मोजज़ा तो लाएं, फिर हम आपकी रिसालत की तस्दीक करेंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गरेबान में डाला और डालकर बाहर निकाला तो रोशन हो गया। इतना रोशन हुआ दोस्तों कि सूरज की रोशनी पर गालिब आ गई हाथ की रोशनी। लोग देख कर के ताज्जुब करने लगे। एक रिवायत में ये आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से फरमाया है कि ये क्या है? तो फ़िरौन ने कहा कि ये हाथ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गरेबान में डाला और बाहर निकाला तो इतनी रोशनी हुई कि आंखें चुंधिया गई और सूरज की रोशनी पर गालिब आ गई। ये पहला मोजज़ा है। दूसरा मोजज़ा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को ज़मीन पर डाला तो वह अजदहा बन गया। फिरौन ने इनकार किया और कहा ये तो जादू है, ये खुला जादू है। और एक वक्त मुतय्यन कर दिया कि कल इस वक्त में आपस में हमारे जादूगर और तुम्हारे दरमियान जंग होगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा को जब डालते हैं और फिरौन के जादूगर रस्सियों को ज़मीन पर डालते हैं, नज़रबंदी की वजह से रस्सी सांप की शक्ल में दिखने लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने, अजदहा ने, सांप ने सारे रस्सियों को निगल लिया, सारे सांप को निगल लिया। जब उन जादूगरों ने देखा, अपने आंखों से इन मोजज़ात को देखा, तो उन लोगों ने कहा कि ये जादू नहीं हो सकता है। वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आए। फिरौन ने कहा कि ये तो सारे जादूगरों का सरदार है, इसीलिए सारे जादूगर इस पर ईमान लेकर के आ गए। चुनांचे जादूगरों के हाथ पैर काटने का हुक्म दिया और उस पर उन लोगों को सूली पर लटकाने का हुक्म दिया फिरौन ने। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो लोग ईमान ला चुके थे। अब वो लोग शहीद हो गए लेकिन ईमान से फिरे नहीं। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वाक़या को बयान किया है कि उसके बाद बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात बख्शी और फ़िरौनियों पर अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने बारहा फ़िरौनियों पर अज़ाब नाजिल करता रहा, कभी खून, टिड्डी, तूफ़ान की शक्ल में। जब भी उन पर कोई अज़ाब ज़ाहिर होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोग झूठा वादा करते थे कि अब हम लोग ईमान लाएंगे, लेकिन जैसे ही अज़ाब टल जाता तो वो लोग फिर इनकार करने लगते। तो अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा मुद्दत तक उनको मोहलत दिया था। चुनांचे जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो उन सारे लोगों को 10वें मुहर्रम में दरियाए नील में अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात दी। जब वो लोग बनी इसराइल बाहर आए तो एक ऐसी कौम के पास से इन लोगों का गुज़र हुआ जो ये कौम बूत परस्ती में मुब्तला थी। चुनांचे बनी इसराइल ने जब इन लोगों को बूत का पूजा करते हुए देखा, बूत परस्ती में मुब्तला देखा, तो इनके दिल में बछड़े की इबादत का शौक़ पैदा हुआ और ये शौक़ गाय परस्ती की इबादत की शक्ल में नमूदार हुआ। चुनांचे इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि ए मूसा, हम लोगों को एक बुत बना कर दो ताकि हम उनकी इबादत कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा, फटकारा और कहा कि तुम लोग निरे जाहिल हो, इतनी खुली निशानियां और मोजज़ात देखने के बावजूद तुम लोग अल्लाह के अलावा दूसरी की इबादत करना चाहते हो, बुतों की पूजा करना चाहते हो। फिर चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से वादा किया था कि जब फ़िरौन और फ़िरौनियों को अल्लाह ताला गर्क कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मैं एक किताब लेकर के आऊँगा जिसमें हलाल और हराम का तज़किरा होगा।
चुनांचे ये बहुत बड़ी निशानी होगी तुम लोगों के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना जाने के लिए तैयारी किए और अपनी जगह नाइब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बना दिए। चुनांचे अपने भाई को अपना नाइब बना करके तूरे सीना पर गए और वहाँ जब गए अल्लाह तबारक व ताला ने 30 रोज़े रखने का हुक्म दिया और उसके साथ फिर 10 रोज़े और मज़ीद रखने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने जब हम कलाम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कान के पर्दे हटा दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देख लिया, अर्श आज़म का मुशाहिदा कर लिया। लौहे महफूज पर जो कलम लिख रही थी उस कलम की आहट को सुन लिया, लिखने की आवाज़ को सुन लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व ताला से कलाम किया, अल्लाह तबारक व ताला को देखने का इश्तियाक पैदा हो गया हद दर्जा, और कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुमको अब देखना चाहता हूँ, तुम्हें देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। अल्लाह तबारक व ताला से बात करने के बाद उसके दिल में हद दर्जा अल्लाह तबारक व ताला को देखने की का इश्तियाक पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते मूसा। अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला को इस दुनिया में अपने माथे की निगाह से सिर्फ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात देख सकती है। उसके अलावा किसी के आँखों में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी ज़ाहिरी आँखों से अल्लाह ताला को देख सके। ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खासियत है। चुनांचे फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम की जानिब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लौटे और फिर बलाम बिन बाऊरा, बनी इसराइल में एक शख्स का नाम बलाम बिन बाऊरा था, जिसके पास बनी इसराइल के लोग गए बद्दुआ करवाने के लिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ आप बद्दुआ करिए ताकि वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। बलाम बिन बाऊरा ने इनकार किया। बारहा इनकार करने के बावजूद उन लोगों ने माल व मता की लालच दी, उनको पैसे, रुपए और दौलत की लालच दी। तो वो हिर्स, मता की हिर्स में, पैसे की लालच में अंधे हो गए। हालांकि वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली था, बहुत बड़ा वली था। वो लौहे महफूज का मुताला कर सकता था, वो मुस्ताजाबुद दावत था, वो जो दुआएं मांगती थी अल्लाह ताला कबूल करता था। लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में बद्दुआ करना शुरू किया। जब बद्दुआ करना शुरू किया तो वो अपने ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कुरान में आता है ये खुफिया तदबीर थी अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से। चुनांचे बलाम बिन बाऊरा हलाक हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया। और फिर आगे आयत में अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके नस्ल का तज़किरा फरमाता है। उसकी नस्ल के बारे में फरमाता है कि पूरे इंसानों को, सारे लोगों को, जितने लोग क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, सबको हमने जमा करके क्या नहीं पूछा था कि हम ही तुम्हारे रब हैं? तो सारे लोग बोले थे कि हाँ, हमारा रब तुम ही हो। लेकिन आज ये लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों बुत परस्ती में मुब्तला हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों पर हुज्जत कायम कर दिया कि लोग इनकार ना कर पाए कि तुम लोग तो पहले ही अल्लाह तबारक व ताला के एक होने की, अल्लाह तबारक व ताला के तौहीद का इकरार कर चुके थे इस दुनिया में आने से पहले ही। तो फिर इस दुनिया में आने के बाद तुम लोग तरह तरह की बुत परस्ती में क्यों मुब्तला हो जाते हो? चुनांचे फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने बुत परस्ती की सख्त मजम्मत की है। और फिर सूरह अनफाल, ये सूरह मदनी है, ये सूरह मदनी है। और सूरह अनफाल की वजह तस्मिया क्या है, सूरह अनफाल का नाम सूरह अनफाल क्यों है? इस पर क्योंकि माले गनीमत, यह अनफाल नफल की जमा है। नफल का माना, अनफाल का माना होता है माले गनीमत, गनीमत का माल। चुनांचे इस सूरत के शुरू ही में लोगों ने सवाल किया है और उस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल किया है कि लोगों ने सवाल किया है कि ऐ अल्लाह, ये अनफाल क्या है, माले गनीमत क्या है, इसमें किसका हक है?
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह और उसके रसूल का है, इस पर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उन आयतों का तज़किरा किया है जिसको मोमिनीन बंदा सुन करके लरज़ जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र सुन करके वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनका दिल पसेज जाता है, वो कांपने लगते हैं। अहले ईमान जब अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा सुनते हैं, उन पर जब अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है तो उनका ईमान मजबूत हो जाता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुजाहिदीन इस्लाम का तज़किरा किया है जो जंग बदर में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हक और बातिल के मारके में शिरकत की थी। और इसमें फिर सूरह अनफाल में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा है कि आपने एक मुट्ठी रेत लेकर के किस तरीके से कुफ़ार व मुशरिकीन पर फेंक दिया और उनके आँखों में जाकर के ये एक मुट्ठी रेत गिर गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, ये जो एक मुट्ठी रेत है तुमने नहीं फेंका बल्कि हमने फेंका है। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हक और बातिल की लड़ाई है और आज कुफ़ार व मुशरिकीन को रुसवा होना है। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को सुरखरू फरमाएगा। चुनांचे मुजाहिदीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला फ़तेह नसीब करता है और बातिल जो है जड़ से मिट जाते हैं और इस जंग में फ़तेह मुसलमानों को हासिल होता है। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की तारीफ़ की है और फिर इस सूरत का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, ये नौवां पारा के मज़ामीन का ख़ुलासा है और ये ख़ुलासा मज़ामीन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाए तो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे।